Can you hear me? Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. So, I discussed with you about complex Fourier series, and let us first of all solve this complex Fourier series. I solved this complex. Let us do a question on this complex Fourier series to establish कि कैसे करना है. ठीक है? तो just a second. So in the question is this: fx is equal to e to the power x from minus pi to pi. Okay. For this, we have to write complex Fourier series. So everybody knows the formula. What is the formula for complex Fourier series? I have told you for minus L to L, correct? मैंने किसके लिए बता रखा है आपको? माइनस L to L के लिए बता रखा है. तो उसके हिसाब से जरा बताना fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Summation n is equal to minus infinity to plus infinity. Yes. Fx e to the power I nx. Am I right? Because I have substituted L is equal to pi. देखो जरा, I have substituted L is equal to pi. So ये बन जाएगा. This will be the Fourier series. This will be the Fourier series. And what will be the value of this C0? कोई बताएगा? 1 by 2 pi. बोलो भाई. Minus pi to pi fx dx. Yes. The value of C0. And if you calculate this, it will become 1 by pi. Fx is e to the power x. So e to the power x minus pi to pi. So ये क्या बन जाएगा? 1 by 2 pi e to the power pi minus e to the power minus pi. So this is equal to sine hyperbolic pi by pi. सबका आ रहा है? Yes, sir. Same. And what about Cn? Cn क्या होगा? 1 by pi integral minus pi to pi e to the power x e to the power minus I nx and dx. देखो जरा. This will be the Cn. And so Cn will be equal to 1 by pi e to the power 1 minus In by x into x upon 1 minus In minus pi to pi. Is that okay? And this is equal to 1 upon pi into 1 upon 1 minus In. यहाँ क्या हो जाएगा? e to the power 1 minus In pi
minus e to the power 1 minus I n minus pi. Upper limit minus lower limit. Fine. Every step you are understanding. अब ये क्या होगा कि ये बन जाएगा 1 over pi 1 minus I n, ठीक है। और यहां पे क्या आ जाएगा, अप्लाई करो भाई। तो इधर लिखोगे e टू द पावर पाई इंटू ई टू द पावर माइनस आई एन पाई माइनस e to the power minus pi into e to the power I n pi, और e to the power माइनस आई एन पाई हो या e टू द पावर आई एन पाई हो, दोनों की वैल्यू क्या होगी, -1/n, -1 टू द पावर n, इसकी वैल्यू भी -1 टू द पावर n, करेक्ट। तो ये बाहर आ जाएगा एंड दिस कैन बी रिटन एज Cn is equal to 2 by pi into 1 minus iota n into -1 to the power n into sine hyperbolic pi. So this is the value of Cn. And now you know both, you can substitute here and get the value of the series. एक बार चेक करना जरा, समझ आ रहा है? ये किसी स्टेप में क्लैरिटी नहीं है तो यू कैन आस्क। बताओ भाई, एनीथिंग विच इज नॉट क्लियर? सर हम्म सर इसमें हमने हाइपरबोलिक के टर्म्स में लिखा, ऐसे तो हम्म इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख के भी सी नोट सी निकाल सकते हैं डायरेक्ट वैल्यू ना, ई रेस्ट पावर पाई की वैल्यू डाल के। नंबर, यस सर। ये भी नंबर ही है ना, साइन यस सर। हाइपरबोलिक पाई भी यस। नंबर ही है। यस बट सर। बात यह है कि तुम्हें ये लिखना आना चाहिए, बिकॉज मान लो Cn के 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शंस गिवन है। एक में यहाँ साइन हाइपरबोलिक है, एक में कॉस हाइपरबोलिक है, एक में कोसेक हाइपरबोलिक है। कैसे करोगे? तो यस सर। ये तो आपको सब कुछ आना चाहिए। अब अगर ये नंबर के फॉर्म में लिखा हुआ है तो आपको वो भी आना चाहिए, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो आपको ये भी आना चाहिए। तो आपको तो ऑप्शन के हिसाब से फाइनल आंसर तक पहुंचना होता है ना, यहां तक लिखने के बाद। तो आप पहले ही ऑप्शन देख लोगे, ऑप्शन में अगर हाइपरबोलिक्स नजर आ रहे हैं तो इधर आ जाओगे, जो कि बहुत ही ज्यादा केसेस में होता है। ठीक है, यस सर। तो ये था आपका कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज। अब एक तरीके से फूरियर सीरीज के सारे टॉपिक्स हो गए। अब हम रैंडम क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन। एक पार्सेवल्स थ्योरम है, पार्सेवल्स थ्योरम है, वो एक्चुअली एक इनइक्वालिटी है, ठीक है। बट we will take it like this. Just wait.
if fx is equal to a naught plus summation n is equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx, if this is the Fourier series for minus pi to pi, the Parseval's identity is regarding the square of the coefficients and that is 2a naught square. कई जगह आपको सीरीज में स्क्वायर नजर आएगा, वहां पे यही यूज करोगे. प्लस समेशन n is equal to 1 to infinity an square plus bn square, that will be equal to 1 by pi integral minus pi to pi function whole square and dx. So this is Parseval's theorem, which we can use when there is, answer is in the form of squares. So like इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे हम लोगों ने तो बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, तो कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे कि आपने fx इज इक्वल टू ये वाला किया था, याद है? माइनस k टू k किया था ना? बोलो भाई, यू हैव डन दिस क्वेश्चन. इसमें क्या था? आवाज आ रही है नहीं? Yes. बोला करो थोड़ा. ए नॉट और एन 0 थे और bn की क्या वैल्यू थी? What was the value of bn? Sir, 4k upon n pi for n equal to 1 3. 4k upon n pi For n equal to 1 3. for n is equal to 135 dash. करेक्ट? Yes. अब देखो जरा, इसमें पार्सेवल्स लगा देते हैं. तो ये तो 0 हो गया. यहां पे हो जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn स्क्वायर करो 16 बाय n स्क्वायर पाई स्क्वायर. और यहां क्या लिखना पड़ेगा? n इज इक्वल टू 135 ना, because all of the n's are not allowed, and this will be equal to 1 upon pi. फंक्शन का स्क्वायर करना है. तो how we will do it? We will do it like this. Integral minus pi to pi fx is this, so I will write it like this, fx whole square and dx. अब थोड़ा ब्रेक करके लिखना पड़ेगा. 1 by pi. So you see, अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो दोनों जगह k स्क्वायर ही आ जाएगा. हेलो. यस सर. दोनों जगह क्या मिल जाएगा मुझे? के स्क्वायर सर. k स्क्वायर में I will get k स्क्वायर both sides. यस सर. तो सर bn में 4k by n pi था. 4k by, हाँ वही मैं सोच रहा था कि यार k कटेगा कैसे. 4k by n pi होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 16k स्क्वायर, तभी तो k कटेगा. अब ये दोनों जगह k ही है, जब स्क्वायर कर दिया तो इसको 2 टाइम्स लिख दूं. बोलो भाई, can I write it like this? Because now this has become even function and it will Yes. become 2k square by pi into, यहाँ पे x आ जाएगा which is pi. And pi cancel. यहां से देखोगे तो k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल. So it will become, क्या बन जाएगा? समेशन को भी ओपन कर देता हूं अब. 16 बाई पाई स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर प्लस 1 बाई 9 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश
इज इक्वल टू 2, तो 2 और 8 और पाई स्क्वायर उधर लेके चले जाओ, तो this whole series will become equal to pi square by 8. I hope you understand. Yes, sir. Pi square by 8. तो ये जो है पार्सेवल्स तुरंत लगाओगे जब आपको यहाँ कोफिशिएंट्स का स्क्वायर नजर आ रहा हो, तो समझ जाना कि पार्सेवल से ही आएगा। गेट में बहुत बार पूछा गया, मैनी टाइम्स इन गेट। कोई डाउट है तो पूछ लो। सो बहुत इजी है, जस्ट सीरीज लिखने के बाद जब आपको ए नॉट ए एन बी एन की वैल्यू पता चल जाए तब ये अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो वैसे ये इनइक्वालिटी है, वैसे इट इज लाइक दिस, लेस देन इक्वल टू, बट ये इस लिमिट में और जिस टाइप के सिंपल फंक्शंस हम ले रहे हैं उस केस में ये इक्वल चल जाता है, तो हमारे लिए ये इक्वल ही है। हमारे लिए दिस इज नॉट इनइक्वालिटी, दिस विल बी थ्योरम। अब बताओ जरा इसमें कोई डाउट हो तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्सेवल्स थ्योरम। क्लियर है? कब अप्लाई करेंगे? जब कोफिशिएंट्स का क्या दिख रहा हो, स्क्वायर दिख रहा हो। when you see the squares of the coefficient then you will apply. तो can I erase this? या किसी को कोई डाउट है इसमें? चलो ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूं। सर वो लेस देन इक्वल टू का क्या कहा था सर? वो एक्चुअली लेस देन इक्वल टू है, बट हम जैसे माइनस पाई से पाई में देख रहे हैं और जिस टाइप के फंक्शंस हम कंसीडर कर रहे हैं तो वो दोनों का डिफरेंस 0 हो जाता है, इसलिए इक्वल टू लगा लेते हैं। तो आपको इक्वल टू ही लगा के चलना, ठीक है। यस यू वांट टू राइट इट इन नोट? यस सर, लिखवा दो सर। लिख लो। actually it is Parseval's inequality, but the kind of functions we are considering in the limit minus pi to pi, this becomes so the Bessel's inequality, उसको पहले वाले को कहते हैं Bessel's inequality. The Bessel's inequality becomes Parseval's identity. Okay? अब एक क्वेश्चन किसी ने भेजा था, वो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ डिस्कस कर लूं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जस्ट में पूछा गया था। किसने भेजा था? आज है क्या यहाँ पे? यस सर। अंशुल? यस सर। तो हालांकि मैंने आपको समझाया था बट आप फिर भी समझ नहीं पाए, मैंने सोचा चलो कोई नहीं, क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। तो फूरियर सीरीज लिखनी है इस इंटरवल में, फंक्शन ये है, दिस इज द फंक्शन। फंक्शन खुद एक इनफाइनाइट सीरीज है, बट घबराना नहीं है, आपसे कोई मतलब नहीं है, फंक्शन जो है वो है, कोई बात नहीं, दैट इज ऑल्सो इनफाइनाइट सीरीज। इसकी फूरियर सीरीज लिखनी है और
तो ये पहले बताओ कि ये किस कैटेगरी में जाएगी, इन विच कैटेगरी इट विल फॉल? कॉम्प्लेक्स। व्हाई कॉम्प्लेक्स? No, sir. व्हाई कॉम्प्लेक्स भाई? कॉम्प्लेक्स तो मैंने बोला ही नहीं, आई हैव जस्ट सेड फूरियर सीरीज। इट इज बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है। ये तो पहले सर टॉपिक चल। हाफ सीरीज में जाएगी। नो, क्योंकि मैंने हाफ सीरीज भी नहीं कहा, वो तो बताना पड़ेगा ना। कैसे जान रहे, कैसे आपने देखा कि हाफ सीरीज है? सर आप 0 to 1 तो कैसे पता चला? कैसे पता चला भाई? ये लिखा हुआ है, ये बताया था कि नहीं कि जो -L to L है वो 0 to 2L भी हो सकता है। Yes, यस sir. बताया। तो भाई जब कुछ नहीं दिया है तो फुल सीरीज ही है यस और सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। Okay, sir. इफ नथिंग इज गिवन और कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज बोलना पड़ेगा आपको। यू विल हैव टू टेल मी कि कॉम्प्लेक्स लिखो, तभी तो मैं लिखूंगा, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज लिखना है? तो ये है आपकी फूरियर सीरीज, और इसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो भी मैं लिखना चाहूंगा ताकि आपको थोड़ा एग्जाम वाली चीज भी बता पाऊं। ऑप्शन ए 1 + 2 cos 2 pi x plus dash dash dash. Option B 1 + cos pi x plus dash dash dash. Option C cos pi x plus dash dash dash. Option D cos pi x plus sin pi x plus half of cos 2 pi x plus sin 2 pi x plus dash dash dash. These are the options. This is a question of just किस ईयर का है अंशुल? सर टिफर 2018 का। टिफर का है? यस सर। अच्छा, टिफर 2018 का है। ठीक है, अब देखो जरा, सबसे पहली घबराहट तो आपको डेल्टा फंक्शन देख के हो जाती है, जो कि आप लोग को डेल्टा फंक्शन के बारे में पता है या नहीं पता है? क्योंकि नहीं पता है तो थोड़ा सा बताना पड़ेगा तभी तो। बोलो बोलो जल्दी बोलो। नो सर। It gives one value. इट गिव्स वन वैल्यू। सर इसका एरिया यूनिट होता है सर, हम्म, मतलब एरिया देता है। तो बेसिकली डेल्टा फंक्शन क्या है मैंने पढ़ा है कि नहीं कर? मैंने आपको बताया है? नहीं सर, अभी तक आपने शायद। तो मुझे बताना पड़ेगा जब मैं फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन कराऊंगा, क्योंकि उसमें तो बहुत सारा डेल्टा फंक्शन है। तो चलो शॉर्ट में बता देता हूँ। सर क्वांटम में हो गया थोड़ा सा। मान लो कि आपके पास एक इस टाइप का ये है, दिस इज ए, दिस इज बी। ये कोई फंक्शन है, ये तो बड़ा सिंपल फंक्शन है। इस फंक्शन को समझने में कोई प्रॉब्लम है? दिस इज योर फंक्शन सपोज, ये समझ पा रहे हो कि नहीं? ये फंक्शन सिंपल बैरियर फंक्शन, कि भाई यहां से शुरू होता है और यहां आके खत्म हो जाता है, और इसके बीच में इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, कितनी? बी। यस, बोलते रहो भाई। यस सर। और साथ में a इंटू बी की वैल्यू 1 होती है। ये मान लो ये फंक्शन गिवन है कि a इंटू बी मतलब इसका एरिया जो है, इसका एरिया सपोज 1 है। ओके, अब आपने क्या किया, दूसरी फोटो देखो, आपने a को कम करना शुरू किया और बहुत ही छोटा बना दिया, लेकिन आपने एरिया नहीं बदलना चाहते आप। तो क्या होगा कि ये बहुत ही भी छोटा बड़ा हो होते जाएगा, जाएगा। तो इसकी हाइट बढ़ती चली जाएगी एरिया को कांस्टेंट रखने के लिए। हाँ, तो मान लो इसको तुमने बहुत ही छोटा कर दिया, तो दिस इज नाउ ए एंड दिस इज बी। तो अब ये
ऑलमोस्ट एक पॉइंट के अराउंड है, एंड दैट पॉइंट इज सपोज x0। इस पॉइंट से थोड़ा ही दूर जाओगे तो ये फंक्शन नहीं मिलेगा। और अभी भी दिस इज fx, दिस इज x, और इसका सेंटर पॉइंट x0 है, मतलब ये x0 के पे है और अदरवाइज ये नहीं है। क्योंकि अब छोटा करने का मतलब ये है कि मैंने a को मान लो 10⁻⁻5 कर दिया, बहुत ही छोटा कर दिया, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10⁻5 बढ़ जाएगा सर। 10⁻5 हो जाएगा, ताकि मल्टीप्लीकेशन अभी भी 1 रह जाए ना। तो ये जो फोटो है, इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं डेल्टा। डेल्टा देख के मत घबराओ, जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। और इसकी लोकेशन कहाँ है ये बताने के लिए यूज कर लेते हैं x माइनस x0। x एक्सिस है और x0 वो पॉइंट है जहां पे ये लोकेटेड है, करेक्ट? तो इस सिनेरियो में इसको डेल्टा फंक्शन कह देते हैं। इसको अब हम रिप्रेजेंट करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करते, ये x0 है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कई बार हम ऐसे भी करते हैं, आपने देखा होगा किसी बुक में या क्वांटम में या कहीं भी। हाँ, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज fx, दिस इज x0, एंड दिस fx इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय, ये जो फंक्शन है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा x माइनस x0, करेक्ट? तो इसकी लोकेशन पता करना हो तो कैसे करोगे? अंदर वाली वैल्यू को 0 के इक्वल पुट कर दो। अंदर वाली वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करोगे तो इसकी लोकेशन पता चल जाएगी, और अभी भी इसका एरिया क्या है? 1। ये चीज और ये चीज सेम है। और इसी चीज को और बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो हम ज्यादा मेहनत नहीं करते, हम बस ऐसे बना देते हैं, ये सब सेम ही है। दिस इज डेल्टा x माइनस x0 एंड दिस इज x, दिस पॉइंट इज x0, दिस इज ऑल्सो डेल्टा फंक्शन। इसका भी एरिया 1, इसका भी एरिया 1, और ये भी जो सिंबॉलिक है इसका भी एरिया क्या है? 1। और कई बार ये कैप भी नहीं नजर आएगा, ऐसे भी बना देते हैं। हम लोग आलसी है ना, तो जितना छोटे से छोटा सिंबल हो वैसे बना देते हैं। दिस इज ऑल्सो डेल्टा फंक्शन, दिस इज ऑल्सो डेल्टा फंक्शन। अब मेन बात आ गई प्रॉपर्टी की, कि x0 से थोड़ा लेफ्ट और थोड़ा राइट ही है ये, और अदरवाइज 0 है। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी निकल के आती है वो ये आती है कि ध्यान से देखना, अब कैलकुलस यूज करूं अगर, तो इस डेल्टा फंक्शन में एक स्ट्रिप ड्रॉ करूं, पतली सी स्ट्रिप जैसे न्यूटन वाले कैलकुलस में होती है, और इस स्ट्रिप की वैल्यू है, चौड़ाई है dx। तो क्या होगा कि ये जो छोटा एरिया, छोटे के अंदर भी छोटा एरिया जो बन रहा है, वो क्या होगा? fx dx होगा। बोलो भाई, यस सर। fx dx होता है ना। इसकी चौड़ाई क्या है? dx, x और इसकी हाइट क्या है? fx। fx। तो ये एरिया हो जाएगा fx dx। तो इसको fx को प्रॉपर फंक्शन लिख लें, fx है यहाँ पे डेल्टा फंक्शन, तो डेल्टा x माइनस x0 dx हो जाएगा, ये छोटा वाला एरिया, रेड वाला। अब अगर मैं इसको थोड़ा x0 से लेफ्ट ले लूं और थोड़ा x0 से राइट ले लूं, जहां पे एप्सिलॉन बहुत छोटा है, तो मेरा एरिया अभी भी 1 है। ये सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो गई जो आपको नजर आती है, और ये वही रिप्रेजेंट कर रही है, एरिया इज इक्वल टू 1। बस इस बार एरिया किससे निकाल लिया? कैलकुलस से निकाल लिया। और अगर मैं सेफ साइड में इस लिमिट को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कर दूं, फिर तो पक्का ही ये पॉइंट बीच में ही आएगा। जो x0 है यस सर। वो तो बीच में ही आएगा। तो ये वैल्यू हम ऐसे लिख देते हैं कि ये 1 होगी। तो पहले, इससे पहले जो लिखा था वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। और फॉर्मूला नंबर 2 हो गया कि अगर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कोई फंक्शन fx यहां मल्टीप्लाई हो जाए, ये कोई दूसरा फंक्शन है, gx कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, gx मल्टीप्लाई हो जाए डेल्टा फंक्शन के साथ, तो इसकी वैल्यू जस्ट gx 0 हो जाती है।
क्यों? क्योंकि डेल्टा फंक्शन की वैल्यू हर जगह 0 है। सिर्फ कहां पे एग्जिस्ट करता है डेल्टा फंक्शन, बताओ? x0 पे सर, x0 पे, और उस पे वैल्यू कितनी होती है? 1 से। 1 नहीं, इनफाइनाइट। उसकी Yes, sir. हाइट भाई Yes, sir. x Yes, sir. x0 पे, ये देखो ना, x0 Sir, पे जो yeah. उसकी हाइट है वो कितनी है? वेरी लार्ज। Yes, sir. उसका एरिया 1 होता है। ये दो अलग अलग बातें हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होना डेल्टा फंक्शन के बारे में। डेल्टा फंक्शन की हाइट इज वेरी लार्ज बट एरिया इज स्टिल 1 बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। तो अब जब ये हर जगह 0 है तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हर जगह 0 होती रहेगी, और जैसे ही x इज इक्वल टू x0 पे पहुंचोगे तो ये तो कांस्टेंट हो गया, ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा और इस इंटीग्रल की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए इसकी वैल्यू gx0 हो जाएगी। करेक्ट? सो दिस इज ऑल अबाउट डेल्टा फंक्शन। जितनी चीजें आपको जाननी चाहिए उतनी मैंने बता दी। सर ये gx वाली प्रॉपर्टी फिर से बता दीजिए सर। भाई ये एक फंक्शन मल्टीप्लाइड है, तो ये x की वैल्यू तुम लेते हुए चलोगे कहीं से भी तो ये डेल्टा फंक्शन की वैल्यू 0 0 0 0, ये वैल्यू 0 0 ही देता जाएगा। जैसे ही x0 पे Yes. पहुंचोगे फिर तो ये कांस्टेंट हो गया, ये इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। Yes, sir. और इस इंटीग्रल की वैल्यू तुम्हें पहले से ही पता है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू gx0 इज इक्वल टू gx0 हो जाएगा। करेक्ट? Okay, sir. Thank you. सो दिस इज ऑल अबाउट डेल्टा फंक्शन। तो पहले तो डेल्टा फंक्शन के बारे में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। लोकेशन ऑफ डेल्टा फंक्शन कैसे निकालते हैं? इसको 0 रख के अंदर जो भी है उसको इक्वल टू 0 कर दो तो लोकेशन ऑफ डेल्टा फंक्शन पता चल जाएगा। लोकेशन ऑफ डेल्टा फंक्शन। तो ये एक तरीके से बहुत ही आसान फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स से भी आसान है। हर जगह 0 है, एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है और वहां पे उसकी वैल्यू बहुत लार्ज है बट एरिया स्टिल 1 है। बस यही प्रॉपर्टी है और क्या है। और इसके बहुत सारे फिजिकल इंटरप्रिटेशंस हैं डेल्टा फंक्शन के। अब जैसे देखो किन चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे अभी तुम ये देख रहे हो कि ये वायरस कैसे पूरी दुनिया में फैल रहा है, इसकी इक्वेशन बनाना चाहते हो, तो t इज इक्वल टू 0 पे उसकी लोकेशन वुहान में कर सकते हो। x इज इक्वल t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे सिर्फ एक जगह था ना, सर वुहान। तो वो डेल्टा फंक्शन से लिख सकते हो। ऐसे ही कोई चार्ज है, वो एक जगह है बाकी जगह नहीं है, तो उसको लिखने का क्या तरीका होगा? डेल्टा फंक्शन। ऐसे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को जब स्टडी करते हो तो एक जगह तुमने मान लो परफ्यूम की बॉटल ओपन करी और उसके बाद पूरे कमरे में डायनेमिक्स देखना है, तो t इज इक्वल टू 0 पे उसको डेल्टा फंक्शन से लिखोगे। सिर्फ एक पोजीशन पे था, बाकी फिर इवॉल्व करता चला जाएगा। कोई वेव फंक्शन है, एक जगह है बाकी जगह नहीं है, डेल्टा फंक्शन से लिखा जाएगा। तो हर वो चीज जो एक जगह है बाकी जगह नहीं है उसको तुम डेल्टा फंक्शन से लिख सकते हो, चाहे वो टाइम का फंक्शन हो चाहे वो स्पेस का फंक्शन हो। जैसे मेरी लोकेशन है इस समय, तो दिस पॉइंट पे है, तो दिस आर डेल्टा आर माइनस आर 0 से लिख दो तो मैं यहां हूं बाकी जगह नहीं हूं। ठीक है? सो ऑल दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा फंक्शन। तो आई होप दैट डेल्टा फंक्शन आपको समझ आ गया। सर हम्म सर डेल्टा x माइनस x नॉट पे इनफाइनाइट हो जाएगा। x नॉट पे और, इनफाइनाइट है। और सर उसकी ये जो अब वो अगर इससे नहीं समझ पा रहे हो तो नहीं समझ पाओगे, जो मैंने अभी इस यहाँ बनाया। यस सर वो समझ आ गया सर। और सर जो एफ ऑफ एक्स है वो उसका एरिया अंडर कर्व दिखा रहा है ना सर? fx थोड़ा ना एरिया ऑफ। अब ये बताओ जरा, तुम यार वही वाली बात कर रहे हो। ये एफ ऑफ एक्स है, ये x है। एफ ऑफ एक्स एरिया अंडर द कर्व होता है। बताओ, ये फंक्शन मैंने दूसरा बना दिया। डेल्टा फंक्शन भी तो एक फंक्शन ही है। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? अब बोल रहे हो, बोलो तो। y इक्वल टू mx सर। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? ये फंक्शन है कि एरिया अंडर द कर्व है? फंक्शन है सर, फंक्शन। फिर तो एफ ऑफ एक्स वहां भी फंक्शन है। अब अगर तुम एरिया अंडर द कर्व निकालना चाहते हो तो मान लो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी,
तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी स्ट्रिप ड्रॉ करोगे, इसको dx लिखोगे, तो ये छोटा वाला एरिया क्या हो जाएगा, fx dx हो जाएगा। अब आप a से b इंटीग्रेट कर दोगे fx dx को, देन यू विल गेट द एरिया। बात समझ Yes, में sir. आई? यस सर, मैं यही बोल रहा कि एफ ऑफ एक्स अगर एक्स नॉट पे इवेल्युएट करेंगे तो वो एरिया अंडर कर्व दिखाएगा। ना ना ना, f ऑफ x तो फंक्शन ही है, f ऑफ x dx एरिया है, अगर सर डेल्टा फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हुआ, चाहे जो हो, f ऑफ x थोड़ा ना एरिया हो जाएगा। नहीं सर वो तो नहीं होगा। f of x is function and f of x dx is area। सर दोनों डायमेंशन मल्टीप्लाई होंगे तभी बनेगा एरिया। वही बात है ना, तो बिना दो डायमेंशन के एरिया कैसे डिफाइन करोगे? जो हम लोग एरिया डिफाइन करते हैं उसमें तो लेंथ और ब्रेथ दोनों आनी चाहिए ना। ये इन्होंने अच्छे वर्ड्स में आपको समझा दिया कि जब तक दोनों डायमेंशन नहीं आएगा। आपको समझ आई भाई बात जो आप बोल रहे हो? बोलो, यस सर। बड़े दबे मन से बोल रहे हो। तो f ऑफ x इज डेल्टा फंक्शन, तो वो डेल्टा फंक्शन dx लिखना पड़ेगा एरिया निकालने के लिए, ठीक है। तो डेल्टा x विल नॉट बी इक्वल टू 1 ना, तुम्हारे डेल्टा x तो इनफाइनाइट है उस पॉइंट पे। जैसे कि तुम ये कह रहे हो कि ये वैल्यू b की वैल्यू तो लार्ज है बट a इंटू बी स्टिल 1 है। ये दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं, तो तुम अभी भी उसी में कंफ्यूज हो जो मैंने उसमें पूरा एफर्ट मैंने लगाया। अब एक बार दोबारा पढ़ना, कोई बात नहीं, कई बार एक बार में नहीं कैच करता है, तो आप इसको एक दो बार और पढ़ना, और हर जगह पढ़ना पड़ेगा, क्वांटम में भी आएगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी आएगा। खैर, तो आई होप थोड़ा सा हल्का फुल्का आपको समझ आया होगा। हाँ, अब जरा इसको देखो, जरा इस फंक्शन को। अब ये बड़ा मजेदार है, ये फंक्शन कैसा दिखेगा। पहले n की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है, तो ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये सारे लोकेशंस हैं इसके, हैं कि नहीं? ये 0 करो तो x इज इक्वल टू n इज द लोकेशन, और ये तो ऐसे नहीं बनाता हूं, these are the locations 1 2 3 like this, and these are the locations of delta function। अब आप समझ जाओगे सारी बातें, yes और no? ये है fx, ऐसा है हमारा ये fx। देखो नजर आ रहा है आपको, समझ आ रहा है? कैसे निकाला लोकेशन? x इज इक्वल टू n इज द लोकेशन, और n की वैल्यू क्या है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। करेक्ट? बोलो भाई। यस सर। और ये देखो, ये ध्यान से, अगर ये मिस हो गया तो गया क्वेश्चन। सोचो इतनी छोटी सी चीज है जो लेस देन और इक्वल टू बना हुआ है। ये हमारा x का पीरियोडिसिटी गिवन है 0 to 2l, और जिसमें 0 इंक्लूडेड है। ओके, 0 इज इंक्लूडेड। अब देखो जरा, जब मैं फुल सीरीज लिखूंगा fx इज इक्वल टू a नॉट बाई 2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos n pi x by l, ये है मेरी सीरीज। बोलो भाई, दिस इज माई सीरीज, फुल सीरीज। क्योंकि ये जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन है, दिख ही रहा है। इवन फंक्शन होने की वजह से मैंने bn को सीधा 0 कर दिया। समझ आ रहा है? दिस इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस के जैसा इधर वैसा इधर। सो दैट्स वाई देखो तुम, इसमें सब कॉस कॉस ही नजर आ रहे हैं, साइन वाला कोई भी नहीं है। साइन ये नजर आ रहा है, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये हो ही नहीं सकता, साइन तो अपीयर ही नहीं होगा। ये ऑप्शन है,
और उसमें भी देखो मुझे लग रहा है ए नॉट की वैल्यू 1 आ जाएगी, दो दो बार है ना, ये इसी में कंफ्यूज कराने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर ए नॉट की वैल्यू 0 आ गई फिर तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना। तो सबसे पहले डीसी वैल्यू निकालते हैं। व्हाट इज वैल्यू ऑफ एल हियर? 2l is Half. 1, so l is half, करेक्ट। तो हमारा ए नॉट क्या होता था? ए नॉट वॉज 1 by l इंटीग्रल 0 to 2l, माइनस पाई से पाई होता था बट यहां 0 to 2l है, तो 0 to 1 fx एंड dx। और fx क्या है? समेशन n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी डेल्टा फंक्शन x माइनस n। अब ये ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 0 की वैल्यू इंक्लूडेड है और 1 की वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है ना। 0 को लेके और 1 से अंदर अंदर, ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है, क्या है आप दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 0 को इंक्लूड करना है। अब देखो इस लिमिट से बाहर तो हमें जाना नहीं, हमारी फोटो सिर्फ इतनी है, हमारी फोटो सिर्फ इतनी है। तो हम क्या करें, अपनी फोटो को, बाहर वाले चीजों को हटा देता हूं क्योंकि वो तो फिलहाल हम देख ही नहीं रहे हैं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं डेल्टा, ये वाला फंक्शन डेल्टा x माइनस 0। और कौन सा फंक्शन लिखूं इस फोटो में, और क्या लिखूं? बोलो बोलो जल्दी बोलो भाई। फंक्शन पीरियोडिक होता है तो सिर्फ पीरियोडिसिटी वाला ही तो फोटो लेते हो, बाकी तो बहुत दूर तक है, साइन भी ऐसे ही होता है। तो इसीलिए मैंने सिर्फ इतना ही लिया। तो इसमें इसमें ये डेल्टा फंक्शन हो गया 0 लोकेशन वाला, और इसको लिखूं कि ना लिखूं 1 को? सर वो तो शायद नहीं लिखना No, होगा। वो नहीं लिखेंगे, तो बस यही है, खत्म हो गया। अब देख लो, ये इंटीग्रल मैंने आपको बता रखा है कि इसके बीच में आ रहा है डेल्टा फंक्शन, इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो दिस विल बी, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके बीच में ये डेल्टा फंक्शन आ रहा है क्योंकि 0 को इंक्लूड करना है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया बताओ जरा, डीसी टर्म? 2 सर। 2 नहीं 1, 1 सर 1। 2/2 विच इज इक्वल टू 1। तो या तो ये सही है या ये सही है। हेलो? यस सर। और सेकंड देखने के लिए निकालने की जरूरत नहीं एग्जाम में। देखो L की वैल्यू है 1/2, है कि नहीं है? यस सर। तो ये हो जाएगा 2n पाई x, करेक्ट। यस सर। तो जैसे ही यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 लोगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो सीधा इसको क्लिक कर दो और तुम चाहो तो वैल्यू निकाल के देख लो। जो a1 की वैल्यू है वो 2 आएगी। a1 इक्वल टू क्या आएगा? 2 आएगा। सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन ना। बट बेसिक्स वही सेम है, जो हमने सीखा है वही है। अब आप, वही बात है कि वो डेल्टा फंक्शन देख के बेसिक्स हिल जाते हैं, वो बात है, और कोई बात नहीं। अब अगर a2 लिखें तो क्या होगा? a2 will be 1 by l, 0 to l, 2l, डेल्टा फिर से x माइनस 0 ही आएगा, और यहाँ cos 2 pi x dx आ जाएगा। बोलो भाई। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? जो दूसरा फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू कॉस 2 पाई 0 विच इज इक्वल टू 2। बताया था ना? एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट। तो यहाँ पे वो एफ एक्स क्या है? cos 2 pi कॉस x। है। तो डेल्टा फंक्शन में तो आपको कंफर्टेबल होना ही होना है धीरे धीरे करके। यहाँ पे मैंने ये यूज कर लिया फॉर्मूला कि माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट डी एक्स
इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट। और इस लिमिट की वैल्यू सिर्फ इतनी है कि एक्स नॉट बीच में आना चाहिए, बाकी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होना जरूरी नहीं है। ये मैंने आपको बताया था, एक्स नॉट से थोड़ा लेफ्ट और थोड़ा राइट भी चलेगा, तो यहाँ पे 0 इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। समझ आया? तो ये कोफिशिएंट भी निकल आया, तो फाइनली आपका ये आंसर हो गया। दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, इसी बहाने आपको डेल्टा फंक्शन का डाउट भी क्लियर हो जाएगा और वो आगे वाले क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगा। एनी डाउट? क्लियर है भाई सबको? यस सर। अंशुल अब समझ आया? यस सर। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न ना, बट ऐसे ही क्वेश्चंस के थ्रू आप हर चीज सीख लेते हो, फिर दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई करते हो, ऐसा ही है। जब तक कंफर्टेबल नहीं हो तब तक तो फिर वो लगेगा कि पता नहीं सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आई विल इरेज दिस। और किसी का कोई क्वेश्चन है? कोई लगा रहा था? क्रेजिक से बोलिए। तो हाफ सीरीज, फुल सीरीज हमने कर लिया, हाफ सीरीज कर लिया, कॉम्प्लेक्स सीरीज कर लिया, पार्सेवल्स, और आपने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को भी सेम, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट से उसके बदले भी, तो आपने डेल्टा फंक्शन को फूरियर सीरीज में लिख दिया। सोच रहे हैं आपके पास इस टाइप का एक डेल्टा फंक्शन था और उसको आपने किसके फॉर्म में लिख दिया? फोरियर सीरीज। साइन और कॉस के फॉर्म में ना। ऑब्वियसली ये इवन फंक्शन था इसलिए ये वाला नहीं आया, कोसाइन के फॉर्म में आ गया। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ फूरियर सीरीज, इवन डेल्टा फंक्शन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस इनफाइनाइट सीरीज। ओके, तो अब मैं ये कहूंगा कि आप लोग कम से कम सब लोग दो दो क्वेश्चन, दो फुल -L2L नोट कर लो जरा, बस इसके बाद फिर फूरियर सीरीज करने की जरूरत नहीं है। दो क्वेश्चन -L2L फूरियर सीरीज से, दो क्वेश्चन -π to π, दो क्वेश्चन 0 to 2L, दो क्वेश्चन 0 to 2π, एक एक क्वेश्चन हाफ सीरीज 0 to L 0 to π, एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज एंड वन क्वेश्चन ऑन पार्सेवल्स आइडेंटिटी। ऐसे करते हैं, जब ऐसे क्लैरिटी है सिलेबस की तो बस फिर हो गया। इतना करोगे आपको हर टाइप की चीज पता चल जाएगी। ओके, ठीक है भाई, सबको समझ आ रहा है? यस सर। अब आप ये करो और उसमें उसको सब लोग करके और आप सबमिट करो। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 2 12। 12 क्वेश्चन। ये 12 क्वेश्चन कर लो आपको। और इसमें
क्रेजिक में आप ऑड नंबर वाले क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना ताकि आंसर तुरंत देख सको, ठीक है ना? सर क्वेश्चन हम्म। नंबर 17 और 19 डिस्कस कर दो ना, उस दिन दिए थे वो। तो दिए थे आपको, मैंने वो पूछा भी था, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया। सर वो मुझे वायरल फीवर हो रखा है, कोई बात इसलिए मैं नहीं। सुन। तो कौन सा क्वेश्चन है? 17 और 19। वो एक्चुअली उसमें कुछ डिफरेंट है भी नहीं, आपने पता नहीं क्यों पूछा है। 17 क्वेश्चन ये है, देखो इसमें तो कुछ भी डिफरेंट नहीं है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। ये सब लोग करना, मैं आपको बता देता हूँ आइडिया। -π to π। वैसे एक बार थोड़ा बताओगे आप कि आप इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? व्हाट इज द केस? -π to π। कौन सा केस है ये? -π to π फुल सीरीज। ये तो हमारा वेल नोन केस है। ये चीज रिपीट हो रही है पूरे स्पेस में। यस, बोलो। और लोग भी Yes, बताओ sir. भाई, ये तो वेल नोन है ना? यस सर। तो फंक्शन लिखो। -π to 0 में फंक्शन क्या है? 0। और 0 to π में फंक्शन क्या है? x। अब इससे आसान फंक्शन क्या मिलेगा बताओ फूरियर सीरीज लिखने के लिए? कनिका हाँ सर। बताओ। ये तो बहुत ही आसान है। और फंक्शन किस कैटेगरी में जाएगा, कोई बताएगा? और सर। नो, नाइदर इवन नॉर ऑड। तुम्हें कहां दिख रहा है ये ऑड? ओह, फर्स्ट और अच्छा। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई सिमेट्री है? ओके ओके सर। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ना। सो इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड। बस बताओ कनिका, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर मैंने भी इसमें ऑड फंक्शन कंसिडर कर लिया था। बस फिर वो तो गलत ही है। मैंने आपसे इतनी बार बताया साइन क्यों ऑड है, देखो जरा ध्यान से। यहां और यहां इसके अबाउट सिमेट्री पूरी मेंटेन है। तो इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में यहां पे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये सेम बन जाएगा। ये क्यों ऑड है? यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करो तुरंत ये सेम बन जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही बन जाएगा। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। यस सर। तो दिस इज नाइदर इवन नॉर ऑड। और आप कौन सा कह रहे हो? 19। हाँ 9। वो भी नाइदर इवन नॉर ऑड है, उसको भी आपने पक्का ऑड ले लिया होगा या इवन ले लिया होगा, जो भी ऑड लिया होगा। देखो ये 19 है। 19 क्या है? इट इज दिस 0 π -π। ये कौन सा फंक्शन है कनिका? बोलो बोलो, टेंशन मत लो, बोलो। मैं बताने के लिए हूं ना, समझाने के लिए। आपने क्या सोचा? सर मैंने तो इसको इवन कंसिडर करके कर लिया था। इवन तो है ही नहीं किसी भी हालत में, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट तो कोई सिमेट्री नहीं है। यहाँ पे क्या कहते हैं, हिरन है और यहाँ पे शेर है। Neither even. इस एक्सिस के इधर ये फोटो और इस एक्सिस के इधर ये फोटो कहीं से सिमेट्रिक है भाई? नो सर। No, sir. तो वो तो एकदम ही ब्लेटेंट रॉन्ग है आपका। हाँ, अगर कोई कंफ्यूज हो सकता है तो ऑड में कंफ्यूज हो सकता है कि y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्री, और वो भी नहीं है, क्योंकि देखो जरा, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। तो दिस इज अगेन नाइदर इवन नॉर ऑड। डाउट जो आपके मन में आ रहा है, आप जो सोचो वो भी पूछ सकते हो। सर हम्म। सर जैसे पहले केस में जो ये एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है ये, हम्म। सर इसमें कुछ कंपेयर करने को है भी नहीं, तो फिर इसको नाइदर इवन नॉर ऑड भी ले सकते हैं ना वैसे भी। अरे वैसे भी मैं सिमिट भाई, मेरे दोनों डेफिनेशन से Yes, बताना sir. है, वो तो है ही, मुझे तो दिख ही रहा है। बट जैसे इसके अबाउट सिमेट्री में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है, जबकि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, बट यहाँ तो कुछ है। तो इट इज नॉट सिमेट्रिक ना। साइन वाला देखो कैसा दिखता है फोटो।
देखो जरा, जो यहां है वही यहां है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सिमेट्री, और जो Yes, यहां sir. है वो यहां है। कनिका, हाँ सर, तो कर लोगे ये? हाँ अब इसका Exactly. फंक्शन भी लिख दूं क्या? यस सर, फंक्शन क्या बनेगा? ये स्लोप नेगेटिव है और इंटरसेप्ट माइनस पाई है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस पाई बिटवीन माइनस पाई टू एक्स, और ये स्लोप पॉजिटिव है, पासिंग फ्रॉम जीरो है तो एक्स। बस हो गया, फंक्शन हो गया। सो दीज आर टू गुड क्वेश्चंस एक्चुअली। इन्होंने जो पूछा है वैसे तो गुड नहीं है, लेकिन जब कंफ्यूजन आ रहा है, स्टूडेंट को कंफ्यूजन आ रहा है, तो अच्छा क्वेश्चन हो गया वो। अब इसको सब लोग समझ लो, इससे थोड़ा सा ये भी तो पता चल जाएगा कि ये ऑड नहीं है, ये इवन नहीं है, फलाना ढिमकाना। दीज थिंग्स विल बी क्लियर ना। तो 12 क्वेश्चन सबको करने हैं फटाफट, आज के आज। और ये देखो जरा, अब ये थोड़ा सा हो जाता है कि आपकी बुक और मेरी बुक में फर्क हो सकता है। आपके पास एडिशन कौन सा है? सर 9th है। 9th है, तो सब लोग सुन लो भाई। 9th में पेज नंबर 486 पे क्वेश्चंस हैं, पेज नंबर 490, पेज नंबर 496, फोर 499, सब जो मैंने केसेस बताए सबसे दो दो जैसे जैसे क्वेश्चन बताए करके, और आप उसमें कोई डाउट आए, बड़ा मजा आएगा आपको कि जब आपको बिल्कुल पता नहीं है आंसर क्या है, आंसर पीछे लिखा हुआ है, सॉल्व करो। इवन ऑड वाला भी लगाओ कि कहीं उसमें गलती तो नहीं कर रहे हो, ठीक है? यस सर। एनी डाउट? चलो, तो अब इसके बाद हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन पे मूव कर जाएंगे, ठीक है? तो फूरियर सीरीज जो है वो पीरियोडिक या फिर पीस वाइज पीरियोडिक फंक्शंस के लिए है, और फूरियर ट्रांसफॉर्म इज फॉर नॉन पीरियोडिक फंक्शन, जैसे कि गॉसियन फंक्शन। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी फैला हुआ है, किसी भी हालत में पीरियोडिक भी नहीं है, पीस वाइज पीरियोडिक भी नहीं है। तो ऐसे फंक्शन को हम ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, ऐसे कंटिन्यूअस फंक्शन को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए वी विल यूज फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो हम लोग फिर नेक्स्ट डिस्कशन शुरू करेंगे। तब तक आज आप ये कर लेना, इसके डाउट्स नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है? ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। प्रणाम सर। ओके, नमस्कार।